how do you manage to enter in such a top-notch law firm in India? किस तरह से आपकी कॉर्पोरेट लॉ जर्नी रही, कैसे आपने सोचा कि यू हैव टू वर्क इन द कॉर्पोरेट लॉ फील्ड? कंसिस्टेंट प्रैक्टिस आई थिंक, एंड गोल ओरिएंटेशन एंड डिटर्मिनेशन. जब तक डिटर्मिनेशन स्ट्रांग नहीं है तो कहते हैं ना कि हम लोग तूफानी कश्तियों से नहीं निकल सकते हैं, तो स्ट्रांग डिटर्मिनेशन हैज टू बी देयर एंड राइट गाइडेंस एंड मेंटोरशिप इज रिक्वायर्ड. CAM in today's is the leading law firm in the country with around 1,000 plus lawyers that they have across 5 offices in India and abroad, right? कौन से की स्किल्स हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर लॉयर में होने चाहिए, और आई थिंक आपने उनको डेवलप किया ओवर द 5 years, तो क्या पता शायद बच्चे अभी से ही शुरू कर दें उन स्किल्स पे वर्क करना. 10 लाइन की चीज को आप एक लाइन में जितना कंक्लूजन रिक्वायर्ड है जिससे आप असेसमेंट कर सकते, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल. राइट. ऑब्वियसली दिस जर्नी इज अबाउट 8 to 9 months. तो बहुत बार बच्चे यही बोलते हैं कि मैम स्कोर्स नहीं आ रहे हैं, मुझे कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ में आ रहे, तो दे टेंड टू गिव अप. हेलो एवरीवन टू एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला. Today we have Kritika Asawa with us, who is a renowned lawyer working at Cyril, Amarchand and Mangaldas. She's having 3+ years of corporate experience. Hello Kritika, how are you? Hi Mansi and Physics Wala, thank you so much for having me here. I'm great, how are you? All great, it's a privilege calling you over here. So Kritika, first of all we want to know, how do you manage to enter in such a top-notch law firm in India? किस तरह से आपकी कॉर्पोरेट लॉ जर्नी रही, कैसे आपने सोचा कि यू हैव टू वर्क इन द कॉर्पोरेट लॉ फील्ड? Right. First of all, Mansi, thank you so much for calling me here. It's my privilege that I'm here and part of this platform. So my corporate law journey started in 2016, exactly when I joined GNLU, which is Gujarat National Law University, in my first year. So basically in our college we had this system कि 10 सेमेस्टर्स होते थे और हर सेमेस्टर्स के बाद हमारे ब्रेक्स रहते थे. So उन ब्रेक्स में यूजुअली हमारे कॉलेज में एक सिस्टम था दैट वी यूज टू डू इंटर्नशिप्स बट स्टेप बाय स्टेप, सो दैट आपको लॉ के अलग अलग जो विंग्स हैं उनका आइडिया लग जाए. यू स्टार्ट विद NGOs, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लॉ फर्म्स, कंपनीज एंड the rest. So that is how when I got the chance and opportunity to intern in some of the best law firms in the country, that is when I realized that maybe this is the place where I belong. This is where I aspire to be once I finish law school, and that is the journey I followed, and here I am. 3 years later, making your mark. Yeah, right. So at that moment you realized कि अच्छा यार, this is my calling, I need to go to the corporate law instead of litigation. Definitely. Very well, nice decision. Yeah. सो कृतिका, हमारे साथ जो व्यूअर्स हैं, जो बच्चे हैं, वो जानना चाहते हैं, वो सभी ना क्लैट एस्पिरेंट्स हैं. वो जानना चाहते हैं कि अगर कृतिका मैम GNLU पहुंची है तो हम कैसे जा सकते हैं, आपके फुटप्रिंट्स को वो बच्चे कैसे फॉलो कर सकते हैं, हाउ कैन दे मैनेज टू एंटर इनटू द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज? Right. So basically I started my CLAT prep when I was in 10th standard, which was sometime around 2014. Nice. Because that was the time when CLAT was just getting a lot of highlight. Like it was very slow, but there were people who knew about it. That is when one of my very school seniors told me about this platform, that this is something that you can pursue. And I was somebody who really liked social sciences and all of these things growing up. So I thought that this is something that I'm studying, and if I have an option to make a career in that particular field, then why not go for it? Correct. So that is how I started doing it, and my father was really supportive at that time, and together we started researching on what kind of platforms we can go, what kind of coaching institutes do we have to sort of go after and everything. तो उसी तरीके से हमने भी अपना हसल चालू किया कि कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट से कौन से वाले पेपर्स, कौन सी वाली क्लासेस किसको फॉलो करना चाहिए. And that is how 2 years of just sheer that one target, that CLAT निकालना कि NLU पहुंचना है, and making my journey in this particular field. And that is how it started. Thankfully really great mentors in my journey there, good guidance, and I think that one goal in my mind, that this is what I need to do, plus parental support at the time, and I
landed in my dream college. नहीं, definitely you don't land it up. Actually I would say कि आपने जो बताया यहाँ पर that is strong determination that is required. तो जैसा कि कृतिका बता रही हैं कि यहाँ पर अगर आप अपने गोल अचीव करना चाहते हैं, आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो कंसिस्टेंट प्रैक्टिस आई थिंक एंड गोल ओरिएंटेशन एंड डिटर्मिनेशन. जब तक डिटर्मिनेशन स्ट्रांग नहीं है तो कहते हैं ना कि हम लोग तूफानी कश्तियों से नहीं निकल सकते हैं. तो स्ट्रांग डिटर्मिनेशन हैज टू बी देयर एंड राइट गाइडेंस एंड मेंटोरशिप इज रिक्वायर्ड. Consistency in the manner that so CLAT, the best part about CLAT is that it's not as complicated as we think. It's a little bit more out there, like you know what you're dealing with, and it's just a lot of consistent practice. Like all you don't need 22 hours in a day. You just need a dedicated amount of time and practice every single day. Like, and just that feeling that how will it feel when you reach that place, something that you've been dreaming about. So that kind of thing. And I think just having a very positive environment and that attitude that we will give our best and then we'll see how it goes. Definitely. So having said that, how was your journey at Gujarat National Law University? किस तरह से था आपका कॉलेज लाइफ? टीचर्स कैसे थे? मस्ती करते थे या सिर्फ पढ़ाई होती थी? तो how was it all about? Yeah, so I think my 5 years in law school were the best time of my life. I suggest that everybody should make the most of those 5 years. Obviously the priority being that you're going there to make a career and all that will always remain a priority, but those are the years when you are you have taken the first step towards your journey. You know that from here on you're going up. Definitely. So there has to be a very nice balance. I was very grateful to have an amazing set of friends, some people that I call family now. And nice. That 5 years they teach you a lot. Like, I'm not the same person I was when I entered in 2016. I am a totally different person, but for better. And like that gradual growth in your life, where I was somebody who lived alone from my parents for the first time. Experiencing that entire hostel life and everything. वो transition जिस तरह से आया होगा, मतलब एक independence, dealing with a lot of things alone and all of that. I was very grateful to have experienced hostel life where I had a community around me that I can fall back on. Really, really great seniors. And as far as professors go, I think GNLU has really great faculty, really amazing professors. Some of them I'm still in touch with and they guide me as and when is required. But I think the biggest part was that you learn to figure things out on your own. Like that everything obviously can't be taught. Some things you just experience while you're there. वो कहते हैं ना, बादाम खाने से अकल नहीं आती है, धोखे खाने से आती है. Exactly. And I think वो धोखे बहुत जरूरी हैं जिंदगी में. वही. अगर आपको धोखे नहीं मिलेंगे ना तो आपको लगेगा अरे wasn't this a little too simple? Because obviously life is not all about the bed of roses. Exactly. It's actually full of thorns. तो वो जब experience होता है ना तो वहीं पर ऐसे वैल्यू बढ़ जाती है. वैल्यू बढ़ जाती है और वो हमें जो गेन नॉलेज जो वहाँ पर गेन होती है ना, फिर वो लाइफ में आगे चल के ना वो सेम गलतियाँ करने से हमें रोकता है. डेफिनेटली. एंड जो आप कम्युनिटी अपने कॉलेज लाइफ में बिल्ड करते हो, आई थिंक यू नेवर बिल्ड अ कम्युनिटी लाइक दैट एवर. आई मीन दोज आर योर थिक एंड थिन्स, क्योंकि आप 5 साल किसी के साथ रह रहे हो सुबह से लेकर शाम तक. हैविंग मील्स इन द सेम मेस, स्टडीइंग द सेम लेक्चर्स, एंड so they are your immediate family. Yeah, immediate family. When you're sick, you are going to your roommate or your friend is like, you can't call your mom every time, right? Obviously. तो आप उन्हीं के साथ अपना सारा सुख दुख, एग्जाम का प्रेशर और एग्जाम का रिजल्ट और मम्मी पापा की डांट, breakups and all that, breakups and discuss कर सकते, patchups भी, सब वही होता है. सब वही होता है. And also there you realize what you aspire in life. जब एज अ क्लैट एस्पिरेंट आपको बहुत सारी चीज़ें पता पड़ती हैं कि अच्छा ये भी होता है, ये भी होता है लॉ स्कूल में. बट लॉ स्कूल में जब आप एंटर करते हो ना तो आपको लगता है अरे ये तो इतना तो हमें नहीं बताया था किसी ने. वो जब आप वहाँ पे जाते हो, उस लीग में आते हो, तब आपको ये सब चीज़ें समझ तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ वन एक्सपीरियंस that will change the course of your life and you can take my word for it. Well said Kritika. Yeah. So Kritika, I want to know कि exactly कैम्प में वर्क करना कैसा है, फ्रॉम द मिसकंसेप्शंस जो लोग समझते हैं कि यार हॉट शॉट अच्छी लॉ फॉर्म है तो बड़ा स्ट्रिक्टनेस होगा, बहुत डेडलाइंस होंगी, तो इस तरह से मतलब रियलिटी क्या है, व्हाट्स एग्जैक्टली द ट्रूथ बिहाइंड द कर्टेन्स? राइट. सी सो CAM in today's is the leading law firm in the country with around 1,000 plus lawyers that they have across 5 offices in India and abroad, right? So I think when
you get an opportunity to work in a law firm like that, it comes with its set of restrictions, because उन rules और regulations की वजह से आज वो वहाँ हैं. Correct. कि you know it's revered and लोग वहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ काम करना चाहते हैं. Right. I definitely say this today कि मैं बहुत privileged हूँ कि मुझे वहाँ काम करने का opportunity मिला है, एक recognition मिला है to be a part of something bigger. Nice. And to make a niche for myself. मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ का सबसे बड़ा मेरा जो टेक अवे रहता है कि एवरी सिंगल डे मैं जिन लोगों के साथ काम करती हूँ, जिस तरह के मैटर्स पे काम करती हूँ, जो एक्सपोजर मिलता है, दैट इज़ लाइक नोवेयर एल्स. राइट. आपको एक कॉन्फिडेंस आता है, एक इंडिपेंडेंस आती है कि मैंने एक करियर अपने लाइफ में सोचा था, जिसके बारे में पढ़ा था, एंड नाउ मैं उस करियर को जी रही हूँ. लाइक आई एम लिविंग माई लाइफ, लिविंग योर ड्रीम, यू नो, बिकॉज ये सपना है. यू आर सो मैनी पीपल हु आर इन लॉ स्कूल्स या जो क्लैट एस्पिरेंट्स हैं कि उनको उस लेवल पे पहुंचना है, उनको देखना है कि हाउ डज यू नो थिंग्स वर्क एट दिस साइड ऑफ द वर्ल्ड. और मेरे लिए कैम में काम करना मेरा एक बहुत बड़ा सपना था. आई हैड अ जर्नी बिफोर कैम हैपेंड एंड आई विल से दैट इट वॉज वर्थ एवरी बिट ऑफ इट. एवरीथिंग दैट आई एम टुडे, आई डेफिनेटली थैंक कैम फॉर दैट, क्योंकि जो एक्सपीरियंसेस, जो लाइफ लेसन्स, जो मेंटोरशिप और जो एक्सपोजर मुझे यहाँ मिला है, आई थिंक आई वुडंट हैव बीन हाफ द लॉयर जो मैं अब हूँ. प्रोवाइडेड कैम नहीं होता. ऑब्वियसली वो डिफरेंट एक्सपीरियंस जो वहाँ पर है, दैट इज व्हाई फिर वो कैम है. राइट. राइट. सो आई वांट टू नो कृतिका, एंड स्पेशली आई थिंक स्टूडेंट्स वो ये जानना चाहते हैं कि जैसे आजकल काफी सारे मूवीज में, बीट बॉलीवुड मूवीज और बीट हॉलीवुड मूवीज, वहाँ पर एक अलग से ना पोर्ट्रेल होता है कोर्ट्स का कि तारीख पे तारीख, या मेरे काबिल दोस्त ये कहना चाहते हैं, या वो लड़ पड़ते हैं तो कोर्ट में जज कहता है मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दूंगा. तो उसी तरह का मेलो ड्रामा भी क्या रियल लाइफ कोर्ट्स में होता है? रियल लाइफ कोर्ट्स में सी इवेंचुअली तो लोगों की जिंदगियों के बारे में फैसले लिए जाते हैं. राइट. तो वो ड्रामा नहीं, वो एक्चुअली लोगों की जिंदगी होती है जो वो एक जज के सामने एक फैसले पे आने की कोशिश करते हैं. तो उतना ड्रामा नहीं होता जितना मूवीज़ दिखाते हैं. बट हाँ, कई बार आर्ग्यूमेंट्स हीटेड हो जाते हैं, कई बार चीज़ें इंटेंस हो जाती हैं जब यू नो जो आर्ग्यूमेंट है या जो मैटर है वो उतना सेंसिटिव या इंटेंस होता है. तो वो हो जाता है कई बार, एंड दैट्स व्हाई it's a great learning experience to witness lawyers argue in courts. And जैसा वो कहते हैं मेरे काबिल दोस्त, तो जैसे हमारे दिल्ली हाई कोर्ट में कहते हैं my learned friend. So some things are similar, but जज कभी लॉयर कभी जज को आके ये नहीं बोलता कि तारीख पे तारीख. लॉयर हमेशा यही बोलता है कि your lordship whatever you prefer, next date of hearing. Date आप दे दीजिए, कोई बात नहीं, हम नोट कर लेते हैं. पहुंच जाएंगे. Because they are the decision makers. So the idea is to keep your point. आप अपनी बात रखिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि वो वहाँ पे हैं एक रीज़न की वजह से हैं, वो जस्टिस डिसाइड करते हैं, एंड वहीं से यू गो फॉरवर्ड. राइट. वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड. कृतिका, आवर स्टूडेंट्स वांट टू नो कि ऐसे कौन से की स्किल्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर लॉयर में होने चाहिए, और आई थिंक आपने उनको डेवलप किया ओवर द 5 years, तो क्या पता शायद बच्चे अभी से ही शुरू कर दें उन स्किल्स पे वर्क करना. सो व्हाट आर दो स्किल्स जो रिक्वायर्ड रहते हैं इस फील्ड के लिए? राइट. आई थिंक सबसे बड़ा स्किल दैट आई विल से इज द एनालिटिकल स्किल्स, पुटिंग थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लॉ पढ़ सकते हो, आप सब याद भी कर सकते हो, लेकिन उस लॉ को रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करके आपके क्लाइंट का आंसर निकालना इज द स्किल. करेक्ट. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर आप लॉ फर्म्स ज्वाइन करने की एस्पिरेशन रखते हैं, तो अ कमांड ओवर योर लैंग्वेज, द वे यू प्रेजेंट योर आर्ग्यूमेंट्स, द वे यू कम्युनिकेट टू योर क्लाइंट, कि इस तरीके से यू नो ये हमारा रास्ता होने वाला है, इस तरीके से हम ये चीज़ें लेके चलेंगे, ये स्ट्रैटेजी. कभी भी आपके पास वो केसेस नहीं आते जहाँ पे 100% चीज़ें आपकी साइड पे है. लेकिन एज अ लॉयर आपका स्किल ये है कि वो जो 10 में से 5 चीज़ें अच्छी हैं, आप उसको इस तरीके से मोल्ड करके, इस तरीके से स्ट्रैटेजाइज करें कि आप अपने क्लाइंट को ये कॉन्फिडेंस दिला पाएँ कि विल बी एबल टू हैंडल इट, हम देख लेंगे. डेफिनेटली. सो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द आर्ट ऑफ समराइजिंग, यू नो, ये हमारे साथ बहुत होता है कि अब जैसे 1000 पेज का कोई पेटिशन आ गया, या कोई कंपनी है जिसका आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन करना है, या कोई समराइज करने के लिए आपको एक आंसर निकालना है, तो अब आप
एक एक चीज को पढ़ने की जगह आप अपने सीनियर को वो 1000 डॉक्यूमेंट नहीं भेज सकते, आपको उनको 20 पेज की समरी भेजनी है, आपसे क्रक्स मांगेंगे, कि इस पूरे मैटर में हुआ क्या, इसीलिए तो तुम मेरे लिए अंडर काम कर रहे हो। बिल्कुल। तो वो जो स्किल है ना कि 10 लाइन की चीज को आप एक लाइन में जितना कंक्लूजन रिक्वायर्ड है जिससे आप असेसमेंट कर सकते, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। राइट। एंड ऑल्सो लॉ स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप किसी भी NLU में एडमिशन या किसी भी लॉ कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, आप लॉ में जिस तरीके से पेपर्स लिखते हैं, स्ट्रक्चर इन योर आर्ग्यूमेंट, स्ट्रक्चर इन योर पेपर्स, दैट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, कंटेंट के साथ साथ स्ट्रक्चर से मार्क्स मिलते हैं, सिर्फ कंटेंट से लॉ स्कूल्स में कभी मार्क्स नहीं मिलते। और ये तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। राइट। कंटेंट के साथ इंटेंट और कंटेंट और प्रेजेंटेशन, क्योंकि आप उस तरीके से देखिए ना कि आपके सामने एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें आपको कोई सेंस ही नहीं बना रहा है कि क्या हुआ इसके अंदर, आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ रही है कि प्लीज मुझे समझाओ कि इसमें क्या हुआ है, वर्सेस आपके पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि किसी ऐसे इंसान को जिसने कभी वो मैटर पढ़ा भी नहीं है, वो सिर्फ वो पढ़ के समझ जाए कि ये क्या है। सो दैट इज अ स्किल, दैट इज समथिंग आई एम स्टिल वर्किंग ऑन, स्टिल लर्निंग फ्रॉम हाउ पीपल डू इट। दिस इज देयर इज लाइक जो लोग लिटिगेशन में काम करते हैं उनमें ये स्किल बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उनकी डेली में आदत होती है कि वो बहुत बड़े बड़े ब्रीफ्स पढ़ते हैं। एंड उनका वो जो समराइजेशन स्किल है वो आई थिंक मुझे लगता है अगर आप लॉ फर्म्स में भी अप्लाई करते हो तो योर लाइफ बिकम्स वेरी ईजी, एंड योर senior will always consider you a very useful asset to the team, which is like great for your growth. Right. But I think on that note, I would agree on that point कि यार जब अभी हम वर्क लाइफ में आते हैं तो I think each day is a new learning day. Definitely. हर दिन कुछ नई नई चीजें सीखने को मिलती है, तो ओवर टाइम बस ये होता है लर्निंग स्किल्स और ज्यादा enhance हो जाती है। It's practice makes a man perfect, and Rome wasn't built in a day. Definitely. So you just have to keep at it and right. just hold on कि हो जाएगा एक दिन में नहीं होगा, बट आराम से एट इट करोगे तो हो जाएगा, डेडिकेटेडली करोगे तो हो जाएगा। राइट। ऑन दैट नोट कृतिका, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क देयर हैज टू बी, मतलब वो पैरिटी नहीं होनी चाहिए। तो क्या कभी आपने इस तरह का पे पैरिटी देखा बिटवीन मेल्स एंड फीमेल स्टाफ या काउंटर पार्ट्स के बीच में? तो ऐसा कुछ है? मैंने अब तक स्टार्ट से लेकर अभी तक एक ही फर्म में काम किया है, एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट स्पेशली इन माई फर्म पैरिटी जैसा कोई प्रॉब्लम नहीं, एटलीस्ट जेंडर बायस रिलेटेड। योर इंसेंटिव और योर रेम्यूनरेशन डिपेंड्स ऑन योर स्किल, राइट, एंड विच इज़ फेयर। आई मीन लाइक जितना मेहनत आप करोगे, जितना आउटपुट आप लाते हो, उसी हिसाब से आपसे ग्रोथ होती है, विच इज़ अ बेसिक कॉन्सेप्ट। इनफैक्ट कैम हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फीमेल पार्टनर्स एज फार एज माई नॉलेज गोज, एंड every year we have women stepping into leading roles. In fact, some of our leading partners who are practice area heads are women. And they are some of the most boss lady women that I've ever encountered. Like whenever I'm in calls with them, or whenever I have to work under them, I am always in awe, and I'm always inspired by the kind of women they are, and the dedication and also just sheer determination to reach that level. Correct. That they're revered across the country as some of the most leading women in law. Right. And that is extremely inspirational. So I think as far as my knowledge goes, CAM does not make any discrimination between purchase parity. It is solely basis your skill and your merit that you are decided. Correct. How and what you should be paid or not be paid. And definitely skills will take you long way. Yeah, definitely. It's all about merit. आप जितनी मेहनत करोगे आपको उसके हिसाब से रिवॉर्ड किया जाएगा. Right. तो and that is something that should be fair also, क्योंकि आपकी स्किल की वजह से आपको उस जॉब रोल में रखा गया है. तो अगर आप वही पूरे ऑनेस्टी से नहीं करेंगे then you can't complain, right? That I'm not getting paid the right way. Because मैंने अपने मेरे को 3 साल हुए वहाँ पे, लेकिन मैंने देखा है जब आप बहुत अच्छे से काम करते हो तो यू गेट द ड्यू रिवॉर्ड, द ड्यू recognition and everything, and more so even if you face obstacles on the way, there are people who help you out, they guide you through your journey, and I think that mentorship is very important for you to reach
the level. As they say कि बिना failures के success का मज़ा नहीं आता. बिल्कुल. So it's one of those things. Right. Yeah. So talking about reaching the levels, I've heard कि आप first generation lawyer हैं. हाँ जी. और generally मतलब कहते हैं ना इस फील्ड में if you are somewhere a nepo kid, जैसे करण जौहर कहता है, तो उस केस में अगर आप शायद आपके पीछे एक legacy है already कि fathers या कोई भी family में है, अगर कोई एक legacy है तो एक kick start मिल जाता है. Definitely. But you being the first generation lawyer, आपके लिए कितना difficult रहा था ये starting में making your mark? सो फर्स्ट जनरेशन लॉयर की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती थी कि सबके लिए इट्स लाइक ब्लैंक स्पेस. राइट. किसी को कुछ नहीं पता क्या करना है. यू आर ऑल्सो रिलाइंग ऑन अदर पीपल फॉर इन्फॉर्मेशन नॉलेज. आप भी वो ट्राई एंड एरर वाला चीज़ कर रहे हैं. right. कि अच्छा इन्होंने ये बोला है, इनका एक्सपीरियंस ये कह रहा है, इनका एक्सपीरियंस ये कह रहा है. हमारे केस में ऐसा था कि वी डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च. माई पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, तो उन्होंने मेरी हर स्टेप पे मदद की कि हमें इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, हमें इस तरीके से चीज़ें करनी चाहिए. एंड आई ट्रस्टेड देम एंड आई डिड माई ओन रिसर्च ऑल्सो एट द सेम टाइम. तो उसके बाद जब मैं लॉ स्कूल में गई तो लॉ स्कूल भी मेरे लिए इंटिमिडेटिंग था बिकॉज NLUs में जो लोग पढ़ते हैं वो एक सर्टन कैटेगरी से आते हैं. इन द मैनर दे आर द क्रीम ऑफ द कंट्री. राइट. तो आपको बहुत सारे लोगों से एक्सपोजर होता है एकदम से. एंड आई वॉज फ्रॉम अ स्मॉल टाउन कॉल्ड उदयपुर. And this was the first time I was getting full exposure to Metro City kids and all of that. Right. And their skills were very different from mine. Their Right. command over language. Right. And in general, you know, the experiences that they had, I did not have those. Right. But the interesting part is कि वो भी वहीं थे और मैं भी वहीं थी. Right. तो आपको अपनी जगह मिल जाती है. दैट वॉज माई लॉन्च पैड. क्लैट वॉज माई लॉन्च पैड क्योंकि क्लैट कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं करता. बिल्कुल. उसमें सिर्फ आपकी मेहनत और हार्डवर्क और स्किल काम करता है. एग्जैक्टली. उसके बाद वहाँ से लेकर देन आई मेड डिसीजंस फॉर माई लाइफ. आई टुक गाइडेंस फ्रॉम माई सीनियर्स, पीपल हु आर ऑलरेडी इन द प्रोफेशन. स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ में इंटर्न करने के बाद, पढ़ने के बाद, समझने के बाद देन आई मेड माई मार्क. और जहाँ तक लिटिगेशन लॉयर्स का सवाल आता है, लिटिगेशन इन लॉ इज़ लाइक डॉक्टर्स. अब आप एक बात बताओ, एक नया डेंटिस्ट है और एक डेंटिस्ट है जो 70 ईयर्स से है इन द सिटी और उन्हीं का बेटा वापस प्रैक्टिस ले रहा है. तो आप किसके पास जाओगे? ऑब्वियसली पापा के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है. और उनके बेटे के पास इसलिए जाओगे क्योंकि आपको पता है कि ये उन्हीं के बैकग्राउंड से आ रहा है, तो ये भी सही दांत निकाल देगा. एग्जैक्टली. एटलीस्ट फर्स्ट इंस्टेंस में. राइट. तो आई थिंक लॉ में भी ऐसा ही होता है. अगर आपके पास बैकग्राउंड है तो आपको एक थोड़ा सा कंफर्टेबल लॉन्च पैड मिल जाता है. बट इंटरेस्टिंगली जैसे नेपोटिज्म का डिबेट होता है कि मतलब अगर आप एक्टिंग नहीं करोगे तो ऑडियंस आपकी पिक्चर नहीं देखेगी, चाहे आप किसी के भी बेटे हो. काफी नेपो किड्स फेल हुए हैं ऑन दैट. एग्जैक्टली. सो इन द सेम वे इट ऑल बॉइल्स डाउन टू कि आप अपने प्रिविलेज का कितना अच्छे तरीके से बेनिफिट उठा सकते हो इन द मैनर ऑफ स्किल डेवलपमेंट. कि अगर आपको लेट्स से एक इन अ लेवल प्लेइंग फील्ड अगर आपको एक एक्स्ट्रा एज मिली है तो आप उस एज से कितना और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो. करेक्ट. प्रॉब्लम ये हो जाती है कि लोग वो प्रैक्टिस नहीं करते. हाँ, एंड देन दे एक्सपेक्ट पहला वाला लेवल मिल गया तो आगे भी ऐसे लेवल्स हो मिलते रहेंगे. ऐसा नहीं होता है. देन वो जो आपसे एक लेवल नीचे भी है ना, वो अपने हार्डवर्क से वहां तक पहुंच जाएगा. और फिर अगर आपका बैकग्राउंड है या लेगेसी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इवेंचुअली योर स्किल, योर मेरिट मैटर्स. एंड लॉ इज अ क्लाइंट सर्विसिंग प्रोफेशन. क्लाइंट इज गॉड. सो इफ client will not see where you are and what you are doing. Client sees output. अगर आप उसको output दे सकते हो तो then you are the favored one. फिर वो फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने generations का lawyer है. Correct. तो मेरे लिए भी वही था. I did my try and error. I put in my hard work. I tried everything and with my own share of struggles I reached where I had to. Right. And now the good part is that now I can tell people who are not like who are first generation lawyers that it takes a little bit of time but you make your mark eventually. Right. So having the learning from this कि जगह मिल जाती है जैसे आपने कहा, लेकिन टिके रहने के लिए जगह बनानी पड़ती. थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी ना. ऐसे बनी बनाई रोटी तो प्लेटर में तो हर चीज सर्व नहीं होती है. मार्केट में टिके रहने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी. हाँ, क्योंकि आज अगर शाहरुख खान को भी मार्केट में रहना है तो उसको पिक्चरें तो करनी पड़ेगी, हिट देनी पड़ेंगी. वरना लोग उसको भी ट्रोल करेंगे, चाहे वो कितने भी सालों से काम क्यों ना करना पड़े. करेक्ट. स्किल्स का ही गेम है. स्किल्स का गेम है. राइट.
नाउ कृतिका, टॉकिंग अबाउट द वर्क लाइफ बैलेंस, जो काफी एसेंशियल भी है आजकल के टाइम पे, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आपका दिमाग स्वस्थ है तो आप स्वस्थ हैं. तो डू यू हैव एनी सच हॉबीज और सम एनीथिंग लाइक ट्रैवल और यू हैव फ्रेंड्स टू गो आउट विद एंड सम हेल्थ केयर दैट यू डू? तो उस सब चीजों का कॉर्पोरेट लॉ के फील्ड में टाइम मिल जाता है करने का? सो कॉर्पोरेट लॉ में क्योंकि अलग अलग तरह के प्रैक्टिस एरियाज होते हैं, अलग अलग तरह की टीम्स में आप काम करते हो, और आपका प्रेशर इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ वर्क that your practice area is getting and how wide it is. So जैसे कि मैं एक सेक्टोरल एक्सपर्टीज प्रैक्टिस एरिया में हूँ, तो हमारा काम नीश सेक्टर का आता है. तो उस वजह से what happens is कि there are days when I'm extremely busy, there are days when I have to manage a lot of things and all of that, but then there are days where I can very nicely manage my work life balance. Achha. So I have those days when it gets extremely hectic, but I also have those days where I can visit my family because they don't live here, meet my friends, take care of my health and everything. So I feel that creates a lot of balance for me, because I have seen people, when there is a work-life balance issue or something like that, it affects their work output as well. क्योंकि आप उतने efficiently काम नहीं कर पाते. But unfortunately, because ये client servicing industry है, तो pressure is a part of the job. मतलब you sign up for it. It's just that eventually जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, और क्योंकि आपका स्किल डेवलप होता है, तो जैसे जब मैं स्टार्ट कर रही थी तो मुझे किसी एक्स चीज़ पे 3 घंटे लगते थे, बट आज 3 साल बाद मुझे उसी एक्स पे आधा घंटा ही लगता है. बिल्कुल. तो उस तरीके से आप अपना काम मैनेज कर लेते हो कि आपको कैसे वो डॉक्यूमेंट पढ़ना है, आपको कितना टाइम लगेगा, आपको लॉ का नॉलेज हो जाता है. तो आपको उतना रीडिंग नहीं करना पड़ता जितना जब आप कोई नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पढ़ना पड़ता है. और मुझे ऐसा लगता है कि मैं पर्सनली आई एम अ वेरी वेरी बिग बिलीवर ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस. आई बिलीव इन द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस. मुझे ऐसा लगता है कि आप खुश रहते हो तो आप चीज़ें एक अच्छी तरीके से डील कर पाते हो. आई मीन लाइक यू वर्क सो हार्ड एंड यू ट्राई टू मेक अ स्पेस ऑफ योर सेल्व्स इन द सोसाइटी, और अगर आप खुशी नहीं हो तो फिर क्या मतलब है? क्या मतलब है, राइट? क्योंकि आप कुछ किस चीज़ के लिए, फिर अगर अंदर से खुश नहीं मिल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दैट हेल्प्स यू कि आप चीज़ें इंजॉय कर पाते हो, आप अपनी छोटी छोटी विन्स इंजॉय कर पाते हो. जिन दिनों लॉसेस भी होते हैं उस दिन भी लगता है कि आएगा, वो दिन भी आएगा, इट्स फाइन. तो मुझे ऐसा लगता है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल बिकॉज जो द टीम दैट आई वर्क विद, माई पार्टनर्स, माई एसोसिएट्स, देर इज़ अ वेरी गुड बैलेंस इन द टीम. आई मीन कभी भी एक इंसान पे सारा प्रेशर नहीं आता. दैट इज़ समथिंग माई सीनियर्स हैव ऑलवेज मेड श्योर कि कभी ऐसा नहीं होता कि एक ही इंसान काम किए जा रहा है, उसी पे प्रेशर है, उसी को छुट्टी नहीं मिल रही है. ऐसा कुछ ऐसा होता है कि अगर 2 लोग छुट्टी पे हैं तो बाकी 2 लोग काम संभालते हैं. और अगर किसी को कोई पर्सनल इमरजेंसी की वजह से ब्रेक चाहिए तो पीपल आर ऑलवेज देयर टू हैंडल वर्क. और क्योंकि हमें वो वर्क लाइफ बैलेंस मिलता है, तो ऑन डेज व्हेन वी हैव टू गिव अ 300% हम बिना कोई स्ट्रेस लिए वो देते हैं. बिकॉज we are like, this is what we work for. We are fresh, we are recharged, and we get to give the best on the table. And I think that is very important, क्योंकि वही बात होती है ना कि आप कमा रहे हैं, आप एक अच्छी ज़िंदगी की होप करते हैं, लेकिन अगर आप वो अच्छी ज़िंदगी जी ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप खुश नहीं हैं, तो उसका आप क्या करोगे? पॉइंटलेस है. तो मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ वेरी यू डिपेंडेंट कि आप अपना वर्क लाइफ बैलेंस कैसे ढूंढते हो. क्योंकि हर इंसान का एपेटाइट बहुत अलग होता है. कुछ लोग बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट्स में मैनिफेस्ट करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, कुछ लोग ब्रेक कर जाते हैं. आप, और वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक्सपीरियंस से समझ आती है कि क्या मैं स्ट्रेस मैनेज कर सकता हूँ, क्या मेरा माई ब्रेन विल फंक्शन एट फुल कैपेसिटी, या शायद ये मेरे लिए नहीं है. तो आप यू चूज योर बैटल्स इज वॉट आई थिंक, दैट इट्स नॉट अ प्लेसेस फॉल्ट और अ पर्सन's फॉल्ट. इट इज़ जस्ट योर आइडिया ऑफ वॉट काइंड ऑफ लाइफ यू एस्पायर टू बी. एंड आई गेस एम्बिशंस आर लाइक दैट, सबके अलग अलग होते हैं. एंड वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट किया जा सकता है. आई वोंट से इट्स अ मिथ, it's just choosing priorities.
Right. It's your choice matters. हाँ, Ultimately, what you are choosing, your choice matters. But even with you, for example, आप भी एक full time job में यहाँ काम करती हैं, तो आप भी कैसे work life balance maintain करती हैं? नहीं, मेरे साथ भी आपने बिल्कुल ठीक कहा, because इस केस में I wanted to ask you कि किस तरह से मतलब क्योंकि मैंने देखा है कि lawyers जो हैं वो matrimonial जैसे शादी के बाद थोड़ा दिक्कतें आती है कि नहीं, तो on that note I have been in that place also. So after marriage I have heard कि यार expectations बढ़ जाती हैं, और जब मैंने अपनी family के साथ देखा तो ठीक है, I have been in that place कि in-laws होते हैं तो उनके कुछ certain benchmark होते हैं expectations के, family के कुछ और होते हैं, and having a kid, parental responsibilities होती हैं, तो वो ना वही आपने जैसे बोला बहुत सही चीज कि it's about the choices you make. So वो जैसे even I am working तो वो parent guilt आ जाता है because you cannot be 100% there. बच्चे के अपब्रिंगिंग डेज में दैट यू कैन बी देयर 90%, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि यू कैन नॉट बी देयर 100%. तो उस केस में ना कृतिका वो आता है, वो मॉम गिल्ट आता है, बट ठीक है, फिर वही चीजें खुद से बैलेंस करना है. इफ आई नो कि सम डेज अगर मैं उतना 100% नहीं दे पाई हूँ तो किसी दिन फिर मुझे 200% देना है अपना पेरेंटिंग में. तो चाहे फिर वो इन-लॉज एक्सपेक्टेशन हो, चाहे वो पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, इट्स ऑल अबाउट कि हाउ यू मेंटेन दैट बैलेंस. एंड यू कैन डेफिनेटली कैन नॉट बी एबल टू गिव 100% everywhere at every time. उतने हम ज्यादा उतनी हमें स्किल्स अभी तक भगवान ने दी नहीं है. Very true. तो राइट, तो है तो हम इंसान ही है, तो हम इंसान ही ना. तो कहीं कहीं किसी दिन मैनेज कर लो, किसी दिन कहीं पे मैनेज कर लो, और तभी वो अल्टीमेटली आपका यहाँ से मैनेज हो सकता है. बिल्कुल सही बात. राइट. अनदर क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क कि आप जैसे मैटर के लिए जाते हैं कोर्ट में या कॉर्पोरेट सेटिंग में, तो वहां पर जैसे सपोज कि आपकी कोई मीटिंग है, 1 घंटे की मीटिंग हुई, आपने अपने क्लाइंट को कन्विंस कर दिया एंड ही इज लाइक ठीक है यार कृतिका विल डू माय जॉब and she will be perfect in it. तो उस 1 घंटे की मीटिंग के लिए पीछे कितनी देर का एक इनपुट होता है, वरना हमें नहीं पता ये चीज, तो आप बेटर बता पाएंगे. तो हाउ इट एक्चुअली इज देयर, लाइक समथिंग व्हिच इज बिहाइंड दैट. या सो जब हमारे पास कोई नया क्लाइंट या कोई नया मैटर आता है और हमारे पास कोई नया प्रोपोजिशन आता है जिस पे हमें काम करना होता है, तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जो हमने कभी पहले डील नहीं किया, या अगर डील की भी है, तो देयर इज़ अ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ रिसर्च दैट गोज, यू नो. आप पहले वो पढ़ोगे कि कंपनी के बारे में क्या है, हाउ हु इज़ योर क्लाइंट, व्हाट डू दे डू, व्हाट इज़ यू नो हाउ डू दे वर्क, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स दे वर्क इन एंड एवरीथिंग एल्स. उसके बाद आप उस प्रोपोजिशन के बारे में पढ़ते हो कि वो कौन से लॉ के अंदर आती है, उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है. यू बेसिकली क्रिएट अ प्रोज एंड कॉन्स, कि आप एक फैक्ट शीट तैयार करते हो. अगर उसके रिलेटेड कोई फॉलो अप क्वेश्चन है तो आप वो प्रिपेयर करते हो कि हम ये कॉल पे पूछेंगे कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, क्या है, कि वी शुड बी अवेयर ऑफ अबाउट एवरीथिंग जो क्लाइंट का है ऑन द पब्लिक डोमेन, या जो हम अपने तरफ से रेडी कर सकते हैं फॉर आवर सीनियर्स. एंड देन वी हैव आवर टीम डिस्कशंस एंड ऑल कि इफ देयर इज समथिंग एल्स दैट वी शुड टेक केयर ऑफ, कोई और ओपिनियन है या किसी और तरह का केवियट है जो हमें ध्यान रखना है, या अगर हमारा कोई पुराना एक्सपीरियंस है कि हमने इस तरह की कोई चीज़ की है तो ये हमें डेफिनेटली उनसे पूछना चाहिए. सो दैट थिंग टेक्स टाइम. तो चाहे इवेंचुअली फिर वो क्लाइंट के साथ आप काम करो चाहे नहीं करो, उसके पीछे का बैकग्राउंड वर्क इज़ अ लॉट. राइट. एंड चाहे वो 2 पेज का एक नोट ही क्यों ना बने, बट उस 2 पेज के कंसाइज नोट पे इट टेक्स आवर्स ऑफ रीडिंग. या सो वो क्लाइंट को 2 पेज ही दिखता है, बट पीछे द एंटायर टीम वर्क्स. प्रैक्टिस जो भी हुआ है, सारा बैकग्राउंड हुआ है, दैट इज एक्चुअली अ माउंटेन. और विजिबल होता है वो जो दूर से माउंटेन इतना सा दिखता है ना, वो इतना दिख रहा है, बट एक्चुअली जो पीछे का सारा बैकग्राउंड वर्क हुआ है. बिल्कुल, आई टोटली अग्री विद यू. सेम विद अस वर्किंग इन एन एडटेक. हमारे साथ भी यही होता है कि अगर आज हम बच्चे को कोई वीडियो दिखा रहे हैं या बच्चे को कोई लेक्चर दे रहे हैं, इट कुड बी अ 1 hour लेक्चर, इट कुड बी एन हाफ एन आवर लेक्चर, बट उसके पीछे इतने सारे एक्सपर्ट टीम्स आर देयर, इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो वो सब एक कलेक्टिव एफर्ट होता है पूरे टीम का, और वो इट समटाइम्स इट गोज डेज ऑफ हार्ड वर्क जस्ट टू एक्चुअली एग्जीक्यूट इट इन 1 single day. तो जैसे सेम वही चीज है कि होता दिखता है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत ज्यादा होती है. एंड वो क्योंकि मेहनत होती है तभी आप उस कॉन्फिडेंस से अपने क्लाइंट से डील करते हैं कि हमें ये सारी चीज़ें पता है, अब लेट्स वर्क टुगेदर और हम आपके लिए एक सोल्यूशन निकालते हैं टू टैकल दिस सिचुएशन टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी. क्योंकि अगर वो रिसर्च नहीं होगी तो इतना एक्सपर्टीज कभी नहीं आ पाता कि आप बिना बैकग्राउंड रिसर्च के कोई भी चीज़ कर ले. आपको बैकग्राउंड रिसर्च, अपना नोट्स तो हमेशा होना ही चाहिए, ताकि उनको अगर आपसे कोई क्वेश्चंस हो तो यू आर इन अ पोजीशन टू आंसर देम वेल. करेक्ट.
सो कृतिका, आई एम श्योर आपको भी घर वालों की तरफ से थोड़ा बहुत मैरिज प्रेशर्स आने स्टार्ट हो गए होंगे. तो कहीं पे सुना था कि ऐसे कि अगर एक डॉक्टर से शादी करता है तो बेटर अंडरस्टैंडिंग रहती है. तो क्या ऐसा लॉयर्स में भी है कि लॉयर से ही शादी करना चाहिए तो वो एक बेटर जोड़ी बन जाती है? सो हाउ इज इट ऑल गोइंग फॉर यू? सी सो जैसा वो डॉक्टर वाला एग्जाम्पल है, वो लॉ में भी चलता है कि अगर कोई लॉयर से शादी करे तो बेटर है, आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, वो आपके प्रेशर समझता है एंड ऑल ऑफ दैट. आई हैव अ डिफरेंट नोशन. मुझे ऐसा लगता है, आई पर्सनली ऑलवेज बिलीव दैट यू नो आई वुड ऑलवेज वांट टू बी विद समबडी जो किसी दूसरे प्रोफेशन का है. अच्छा. क्योंकि मुझे ऐसा हमेशा लगता था कि अगर मैं सेम प्रोफेशन का कोई लूँ तो हम एक ही तरीके की बातें करेंगे. बट अगर कोई नए प्रोफेशन का हो, किसी चीज़ को जो मैंने नहीं पढ़ा है, जिससे मेरा एक्सेस नहीं है, तो थिंग्स की थिंग्स आर इंटरेस्टिंग. आप नई तरह की चीज़ों के बारे में बात करते हो एंड ऑल ऑफ दैट. और मुझे ऐसा लगता है प्रेशर्स इन वर्क स्ट्रीम एक ऐसी चीज़ है ना कि जो आज का टाइम में जो भी नौकरी कर रहा है वो सब इस चीज़ से डील करते हैं. जस्ट आपकी प्लेस ऑफ वर्क बदल जाते हैं, आपका प्रैक्टिस एरिया बदल जाता है, लेकिन प्रेशर सबके वही है. सबके वही, अनलेस अनटिल आप एक क्लाइंट सर्विसिंग इंडस्ट्री में, सबके वही क्लाइंटेल होते हैं, वही डेडलाइंस होती है, वही प्रेशर्स होते हैं. आई थिंक इवेंचुअली ऑल इट बॉइल्स डाउन टू इज कि सामने वाला कितना अंडरस्टैंडिंग है. ये समझने के लिए कि किसी दिन आपका काम बहुत ज़्यादा होगा, किसी दिन उनका काम बहुत ज़्यादा होगा. तो बेसिकली आप अपना डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से करते हैं. राइट. इवेंचुअली आई एम श्योर इट्स जस्ट एन ईजी वे आउट अगर डॉक्टर से शादी कर ले और लॉयर से शादी कर ले, क्योंकि आपको वो बेसिक के 4 स्टेप नहीं फॉलो करने पड़ेंगे. बट मुझे ऐसा लगता है कि इट्स ऑल्सो अ पर्सन टू पर्सन डिपेंडेंट. इवेंचुअली जब आप किसी को ढूंढते हो जिससे आपको पूरी ज़िंदगी जिसके साथ निकालनी है, तो आई थिंक प्रोफेशन इज येस अ प्रायोरिटी, बट आई थिंक मोर देन द फैक्ट कि हाउ कंपैटिबल यू आर विद द अदर पार्टी. अब ऐसे तो आप एस्ट्रोनॉट और कोई प्रोफेसर भी हो, एंड इफ दे गेट मैरिड एंड इफ दे हैव ग्रेट कंपैटिबिलिटी, तो दे कैन ऑल्सो वर्क आउट. दे डोंट नीड टू बी ऑफ द सेम प्रोफेशन इज माय अंडरस्टैंडिंग. आई फील राइट. हैविंग अ गुड रिलेशनशिप एडवाइस फ्रॉम कृतिका कि कंपैटिबिलिटी इशू मैटर करते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि शादी टिकनी है तो वो डिफरेंट प्रोफेशन वालों की भी टिक जाएगी, जिनकी नहीं टिकनी है वो सेम प्रोफेशन वालों की भी नहीं टिक सकती. सेम स्कूल, सेम करियर एम्बिशन, कुछ भी हो जाए, दैट विल नॉट वर्क आउट. राइट. अगर वो आप दो ह्यूमंस ही कंपैटिबल नहीं हो तो फिर आप लाइफ प्रॉब्लम से कैसे डील करोगे? राइट. करेक्ट. कृतिका, वी ऑल नो कि पैंडेमिक ने हमारी कंट्री को बहुत ज़्यादा एडवर्सली अफेक्ट किया था. और सभी सेक्टर्स में काफ़ी मेजर इम्पैक्ट पड़ा था. तो आई नो कि जिस टाइम पे ये कोविड आया था उस टाइम पे आप अपने लॉ स्कूल्स में आई थिंक रिक्रूटमेंट ईयर में थे. तो आपको कितना नेगेटिव इम्पैक्ट रहा इन सब चीज़ों का? तो मुझे याद है कि मेरा 4th ईयर चल रहा था एंड हमारा 8th सेमेस्टर एंड होने वाला था. एंड GNLU में ये कॉन्सेप्ट था कि 4th ईयर एंड्स में हमारा डे 0 स्टार्ट होता था, विच वाज अ रिक्रूटमेंट डे. और उसके लिए हमारी सब प्रेपरेशंस वगैरह चल रही थी. एवरीबडी वाज वेरी स्ट्रेस्ड कि 4th ईयर एंड होने वाला है, जॉब्स का सीन देखना है, कैसे क्या होगा. देन टर्न्स आउट पैंडेमिक हिट. अच्छा. पैंडेमिक हिट तो सडनली द जॉब मार्केट वाज there's nothing because all the majorly firms were on freeze. क्योंकि दुनिया ही रुक गई थी. ना पैसे आ रहे हैं ना जा रहे हैं, एम्प्लॉइज को कैसे देंगे. बहुत मेजर ट्रांजिशन. पर्सनली फॉर मी इट वाज kind of a very low year, the 2020-2021 sector, because I tried my best. I faced a lot of rejections in that time. I applied to a lot of firms. I gave interviews and all, because the problem was that the structure had collapsed. How it used to work out was that there were some firms that their criteria of segregation was ranks. Correct. There were some firms who had internship as a requirement and all. The problem was that the basic structure collapsed, so the toppers of the batch were not placed. Achha. So once the toppers weren't even placed, so competition got even more stringent. Right. Because there were very limited number of slots open and a lot of people who were unemployed. Right. So I think, and I've seen a lot of people that I knew had great scores, great internships, but they were not able to, find jobs. I was also one of those people who always thought कि एक ही गोल है लॉ स्कूल का कि I want to get out with a nice corporate job. Correct. But I unfortunately could not fulfill that goal for myself.
then applied separately after I graduated. And then I got CAM after everything. So all I'm saying is that unexpected things can happen. Untimely hurdles can come your way. And don't be bogged down with that. Just have at it, keep a hold on yourself, and just hope that 5 years later you'll laugh at this point कि यार इतनी मेहनत करने के बाद पहुंच ही गए जहाँ पहुंचना था. एंड ट्रस्ट मी, जब वो चीज़ आपके लाइफ में आती है तो उसकी रिस्पेक्ट और वैल्यू 100x बढ़ जाती है. क्योंकि आपको लगता है कि बहुत मेहनत की है, बहुत एक रास्ता देखा है यहाँ तक पहुँचने के लिए. और वही है जहाँ where there's a will there's a way. तो प्लीज़, इवन विथ क्लैट आई विल ऑलवेज टेल यू कि एग्ज़ाम के दिन क्या होता है आपको कभी नहीं पता, बट आप अपना रास्ता तो बना ही सकते हो. एंड इट्स नेवर द एंड ऑफ द वर्ल्ड. राइट, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि काफ़ी सारे क्लैट एस्पिरेंट्स यही बोलते हैं कृतिका कि ऑब्वियसली दिस जर्नी इज अबाउट 8 to 9 months. तो बहुत बार बच्चे यही बोलते हैं कि मैम स्कोर्स नहीं आ रहे हैं, मुझे कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ में आ रहे, तो दे टेंड टू गिव अप. सो एज यू आर सेइंग कि गिव अप नहीं करना चाहिए इस पॉइंट पे. कभी कभी ऐसे हर्डल्स आते हैं लाइफ में, लेकिन अल्टीमेटली वही है ना कि शायद फतेह वही हासिल करता है जिसने कभी भी गिव अप नहीं किया. करेक्ट, राइट. ऑन दैट नोट कृतिका, आई वांट टू नो कि जैसे पेट्रियार्कल सोसाइटी, आई एम श्योर आपने भी अपनी लाइफ में कभी ना कभी फेस किया होगा. ऑब्वियसली विमेन हैव टोटली राइजन अबव पेट्रियार्की. तो इस तरह की इश्यूज को, जो भी फैमिली में इश्यूज थे या पेट्रियार्की को लेके थे, आपने कैसे उनको ओवरकम किया, उन सब चैलेंजेस को? आई थिंक जहाँ तक पेट्रियार्की का सवाल होता है, थैंकफुली द फैमिली दैट आई कम फ्रॉम, माई पेरेंट्स नेवर डिड एनी सॉर्ट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन मी एंड माई ब्रदर. आई हैव अ यंगर ब्रदर. और हमें हमेशा एक साथ बड़ा किया गया, एक ही तरीके के अपॉर्चुनिटीज़ दिए गए, एक ही तरीके से ट्रीट किया गया. तो मुझे ऐसा लगता है कि पेट्रियार्की को ओवरकम करने का एक ही तरीका है, विच इज़ टू वर्क रियली हार्ड एंड मेक योर मार्क. जब आप इस दुनिया में अपनी एक जगह बना लोगे तो देयर इज़ नोबडी हु कैन क्वेश्चन यू. लाइक माई मम ऑलवेज सेज कि जिस दिन आप अपना कुछ कर लेते हो, जिस दिन आप यू आर ऑन योर ओन, आपकी इंडिपेंडेंस आपके हाथ में आती है, आप अपना पैसा कमाने लगते हो, इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो आपको बोल सके कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. दैट इज़ प्राइमरी. तो उस टाइम पे पेट्रियार्की विल ऑल्सो नॉट कम इन योर वे. यू हैव टू शो द वर्ल्ड दैट लिसन, मैं यहाँ हूँ, अपनी मेहनत से हूँ, अपनी जगह बना रही हूँ और टिकी हुई हूँ. राइट. तो अब वो पेट्रियार्कल आपके फैमिली में हो, दोस्तों में हो, या इन जनरल लाइफ में हो, आपको कभी पहली बात तो डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जहाँ हो वो आपने किसी से फेवर लेके नहीं किया, आप खुद की मेहनत से पहुँचे हो जहाँ पहुँचे हो. और आप जिनके साथ काम कर रहे हो, जिन्होंने आपको लिया है, उन्होंने सोलली आपको अपने स्किल के लिए लिया है. एंड मुझे लगता है वो सब ज़्यादा ज़रूरी है. तो अपने अंदर फेथ रखें. दैट इज़ समथिंग आई स्टिल वर्क विथ, टू कीप दैट कॉन्फिडेंस इन मी इंटैक्ट, टू कीप दैट स्किल इंटैक्ट, कि if I keep working hard, I will always maintain my place in this world. And again, on that note, कि कहते हैं ना, चढ़ते सूरज को तो हर कोई सलाम करता है. हर कोई सलाम करता है. The world is very fickle minded. तो इसीलिए इतना बॉग डाउन होना नहीं होना चाहिए. अफेक्ट नहीं होने देना चाहिए खुद को. क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता. Some days you have bad days, some days you have good days, but when good days happens, and someday you might have the bad people around. So, there are multiple factors. Right. But the point is कि अगर सिर्फ good days ही होंगे तो फिर आपको good days की वैल्यू ही नहीं होगी. बिल्कुल सही बात. तो दोनों ही बातें हो जाती हैं. Correct. So कृतिका, talking about the supportive parents, I'm sure अंकल आंटी ने आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है आपके लॉ स्कूल की जर्नी तक. अभी क्या है, जैसे क्या होता है ना, रिश्तेदारों का सिर्फ 2 ही टाइम फोन आता है, या तो 10th 12th का रिजल्ट पूछने के लिए, वरना लड़की की शादी करा दो, इतनी उम्र कर दी यार, कब शादी करोगी इसकी. तो आई एम श्योर अंकल आंटी को भी वो प्रेशर आता होगा. तो उन पे ये प्रेशर आता है, फिर आप पे भी आता होगा. तो कैसे रहता है ये सब चीजें? तो मेरे साथ ऐसा था कि मेरे डैड अभी एक IAS ऑफिसर है, स्टिल सर्विंग. तो वो एक गवर्नमेंट जॉब में थे. तो आई थिंक ग्रोइंग अप हमारे साथ ये बहुत होता था कि रिश्तेदार या फैमिली फ्रेंड्स वो लोग घर आके बोलते थे कि अरे बट आप भी सरकारी नौकरी करो, पापा भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, लड़की को वकील मत बनाओ, लड़ाकी बन जाएगी. ऐसे लड़कियां लड़ाकी होती नहीं है. हाँ, क्योंकि उनको ऐसा लगता है ना, लॉयर्स मतलब हॉट ब्लडेड विमेन की बस कभी भी मतलब लड़ने आ जाएंगी, कि आपको वो एक एंगर और वो एक वैसा कुछ चाहिए, विच इज अ वेरी अकॉर्डिंग टू वेरी बेसलेस नॉर्म, कि ऐसा नहीं होता है.
तो ये सब आता था. बट मैंने वेरी अर्ली ऑन आई टोल्ड माई फादर कि मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी है. उनका बाद में भी आता था कि जुडिशरी कर लो, देखो एक सिक्योरिटी होती है, एक वर्क लाइफ बैलेंस होता है, आप इस तरीके से यू नो आपको ये इंसेंटिव्स मिलते हैं, आप कंफर्टेबल रहते हो और ये सब. बट आई वॉज वेरी क्लियर ऑन कि मेरे को काम तो लॉ फर्म्स में ही करना है. तो ये सब तो घर वाले ऐसे बहुत बोलते भी थे इस चीज़ को लेकर. And my parents were very clear about the fact that it was not important for them कि मैं कहाँ काम कर रही हूँ. It was important for them that I was independent financially and otherwise. And most importantly, I was on my 2 feet. Right. कि मैं जहाँ भी काम करूँ मैं अपने लिए काम कर रही हूँ. उन्होंने हमेशा एक चीज़ मुझे बोली थी कि तुम्हें अपने लिए काम करना है, अपनी जगह बनानी है, अपना सिक्योरिटी देखना है. एंड योर सिक्योरिटी कम्स फ्रॉम योर इंडिपेंडेंस एंड योर कॉन्फिडेंस दैट यू गेन फ्रॉम योर जॉब. तो आई थिंक मेरे पेरेंट्स ने अगर ऐसा कभी थैंकफुली मेरे को तो सुनने में नहीं आया, बट अगर मेरे रिलेटिव्स ने बोला भी होगा तो आई थिंक माई पेरेंट्स वर वेरी क्लियर अबाउट इट कि लड़की की शादी तो बाद में करेंगे, पहले लड़की को अपने 2 पैरों पे खड़ा होना सिखाओ, ताकि लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए वो अपने आप को हैंडल कर सके. एंड देयर इज वन थिंग आई रिमेंबर, और मुझे आज भी वो बहुत अच्छा लगता है कि जब मेरी पहली बार नौकरी लगी थी और मैं घर गई थी और मैंने पापा को बताया था कि मेरा ऑफर लेटर आ गया, तो मेरे पापा ने बोला था कि अब हमारे घर में 2 अर्निंग मेंबर्स हो गए हैं इन द फैमिली. लाइक यू नो आई एम नॉट द ओनली वन. Right. हमारी फैमिली इनकम हैज 2 people now. Right. So for him that was the proudest moment. It's not about how much you earn or where you're working. It's just your parents getting that relief. कि my kid is out in the world. Right. उसने अपने रास्ता बना लिया है और वो अपने आप को संभाल लेगा. Right. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर आपके रिलेटिव्स या आपके दोस्त या आपके पेरेंट्स को कोई प्रेशर दे रहा है तो आप बस अपने पेरेंट्स को बोलिए कि थोड़ा टाइम रुक जाओ, मेरे को मेरा रास्ता ढूंढने दो, सब अपने आप चुप हो जाएंगे. सब अपने आप चुप हो जाएंगे. क्योंकि आपका काम बोलता है. क्योंकि ये वही रिलेटिव्स हैं जो जब आप एक अच्छे पोजीशन पे पहुंच जाते हो तो बोलते हैं कि अरे लड़का क्या ढूंढना है, अब तो लड़की खुद अपने लेवल का लड़का लेके आएगी, हम कहाँ से लाएंगे, क्योंकि वो खुद यू नो शी हैज मेड दैट मार्क फॉर हरसेल्फ. तो एज यू सेड, आपने पहले बोला था कि सोसाइटी का कभी कोई गारंटीड नोशन होता ही नहीं, वो बदलते रहते हैं. मतलब सोसाइटी को तो कहते हैं ना कि भाई ना कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो उनको अपने काम पे छोड़ देते हैं ना. हम लोगों को जिस राह जाना है हम वो राह पकड़ते हैं. और अगर ऐसा भी कोई प्रॉब्लम है कि आपके पेरेंट्स की साइड से ऐसा कुछ आ भी रहा है तो आपको बस, मुझे लगता है पेरेंट्स का ऐसा होता है कि उनको बस एक फेथ चाहिए, एक रीअश्योरेंस चाहिए कि हमारा बच्चा सही राह पे है. मुझे नहीं लगता कि दुनिया का ऐसा कोई भी पेरेंट होगा जिसको इस चीज़ से प्रॉब्लम हो कि माय किड इज सक्सेसफुल, या वो अच्छी जगह पे काम कर रहा है, अच्छा एक्सपोजर, उसकी सोसाइटी में एक वैल्यू है, एक जगह है. तो इसीलिए रिलेटिव्स एंड ऑल इज साइड न्यूज़. आप वो मेन कैरेक्टर, and that is how you should live your life. You are the actor of your story. You are the actor of your Play story. it accordingly. Right. Definitely. So at last I would want to know, Kritika, कि जो भी बच्चे CLAT के लिए अभी प्रिपेयर कर रहे हैं and the kids who are juggling between school and CLAT right now, उनके लिए कुछ golden words, कुछ advice जो आप देना चाहेंगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि honestly ये जो टाइम होता है, आपको 2 तरह के लोग मिलेंगे अपने स्कूल में. एक जो बहुत बढ़िया चिल कर रहे होंगे, दे विल बी, वो आपको हमेशा बोलेंगे कि अरे यार तू क्यों इतना पढ़ाई कर रहा है, क्या करना है कोचिंग सेंटर जाके, बंक कर लेते हैं, चल मूवी देखने चलते हैं, कहीं चलते हैं. और घर पे आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे होंगे कि नहीं बेटा थोड़ा फ़ोन छोड़ दो, थोड़ा सा पढ़ाई कर लो. ट्रस्ट मी, उनकी बात सुनो, वो सही कह रहे हैं. Right. I had this thing, okay. My parents did not give me a cell phone in 11th and 12th standard. I used to fight with them. I used to cry. मेरे सारे दोस्तों के पास है, मुझे क्यों नहीं दिया? And my father was very clear कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है और डिस्ट्रैक्शन है ये तो नहीं मिलेगा. आप जब कॉलेज चले जाओगे तब हम बिना क्वेश्चंस आपको दे देंगे. एंड मेरे साथ भी ये होता था. मेरे आसपास दोस्त वगैरह होते थे, वो घूमने फिरने जाते थे, मैं पढ़ाई करती रहती थी. मेरे कोचिंग सेंटर और मॉक टेस्ट ही ख़त्म नहीं होते थे. तो ये होगा, आपको फोमो भी फील होगा, सब होगा. बट जब वो क्लैट का रिजल्ट आता है ना, और जब आपको वो पता पड़ता है कि आप लॉ स्कूल जा रहे हो, जिस भी लॉ स्कूल आप जाने वाले हो, और जब आप अपने आप को 5 साल बाद कंपेयर करते हो ना, तो यू विल गो एंड थैंक योर पेरेंट्स कि थैंक यू मेरे से फ़ोन ले लिया. कि थैंक यू आप मेरे सर पे बैठे रहे कि बेटा सुबह 7 बजे उठ जाओ, अच्छे से पढ़ाई कर लो.
you just have to be consistent. CLAT is not rocket science. It's genuinely not. It's just a lot of practice and consistency. Listen to the people that mean well. सबकी बातें मत सुनो वरना confusion create होगा. बट जो पकड़ रहे हो अपना एनालिसिस करो strengths और weaknesses का और उन पे काम करो. एंड हैव अ स्ट्रैटेजी इन योर माइंड इन द मैनर कि वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या होगा. बैकअप ऑप्शन हाँ, बैकअप ऑप्शन लेके चलो, क्योंकि और कुछ नहीं तो उससे आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि ये नहीं तो ये, पर मैं मैनेज कर लूँगा. बट एम हाई, अपने आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर मत डालो. ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती. लोग जहाँ पहुँचना होता है उनको वो रास्ता निकाल के पहुँच जाते हैं. दिस इज़ जस्ट अ प्लेटफॉर्म एंड अपॉर्चुनिटी. और जो एक्सपीरियंस आप क्लैट प्रेपरेशन के टाइम पे गेन करते हैं वो बहुत हेल्प करता है आपको जब आप लॉ स्कूल्स जाते हो, क्योंकि आपके पास एक बैकग्राउंड होता है. दूसरा, अपने मेंटर्स की सुनो जो वो आपको क्रिटिसिज्म दे रहे हैं, बुरा मत मानो, क्योंकि वो क्रिटिसिज्म बहुत ज़रूरी है. हाँ, टेक इट पॉजिटिवली इन योर स्ट्राइड, क्योंकि इवेंचुअली आपकी सक्सेस सिर्फ आप ही को इम्पैक्ट करने वाली है. आसपास सिर्फ साइड कैरेक्टर्स हैं, वो सिर्फ खुश होंगे, लेकिन योर लाइफ विल बी चेंज फॉर बेटर. एंड ट्रस्ट मी, 5 years लेटर यू विल बी लाइक कि थैंक गॉड मैं वो पिक्चर देखने नहीं गया. हाँ, नहीं तो मैं यहाँ नहीं होता. तभी तो आज मैं लोगों को पिक्चर दिखा सकता हूँ. और देयर इज़ नो बिगर जॉय देन फाइंडिंग योर नीश इन द वर्ल्ड एंड इंडिपेंडेंस, जहाँ पे लोग या आपके पेरेंट्स को आके आपके वही रिश्तेदार और वही दोस्त के मम्मी पापा आके कहते कि अरे अच्छा वो वहाँ काम कर रही है, ये तो बहुत बढ़िया जगह है. हाँ. और उससे बड़ा सेटिस्फैक्शन एज इंडियन किड्स, ब्राउन किड्स कहीं नहीं मिल सकता. यू विल अग्री टू मी ऑन दैट. पेरेंट्स से वैलिडेशन से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं होता है. तो इसीलिए रिलैक्स करो, ट्राई टू कीप काम. उस दिन क्या होता है आपको कभी नहीं पता पड़ेगा, बट इस कॉन्फिडेंस से जाओ कि मैं जितना कर सकता था मैंने कर लिया, अब बाकी लेट माई फेट डिसाइड एंड माई हार्ड वर्क पे ऑफ. एंड जितना आप मेहनत करोगे वो कभी वेस्ट नहीं जाती. And I'm sure people at Physics Wala, your mentors, they'll always be there to guide you, give you that positive influence that you need in life. And I wish you all the very best. And yeah, that's about it. Thank you so much, Kritika. Thank you for coming here and enlightening our students with such warm and golden words. I hope जो भी बातें आपने बच्चों को बताई हैं, इन चीज़ों को बच्चे इम्प्लीमेंट करेंगे. और जैसे कि आपने एनेक्डोट्स दिए हैं और बताया है कि कभी भी गिव अप नहीं करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है और डिटर्मिनेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ताकि एट द एंड ऑफ द डे आप खुद को भी प्राउड फील करा सकें और अपने पेरेंट्स को भी. थैंक यू कृतिका फॉर कमिंग हियर. Surely would love to have you again. Thank you so much. Thank you, Physics Wala, for having me here. Thank you.